Assalamualaikum students, I hope you are fine. Today our topic is post-structuralism and deconstruction. These two terms are often used interchangeably, or sometimes some critics say that they are two different schools of thoughts or literary theories, but we'll use them as one. Okay, even if there are differences, they overlap so much that there are hardly any differences in whatever comes under these names or literary theories. Acha, I will discuss this lecture in English, but I will also use a lot of Urdu because certain literary theory concepts are a bit difficult, and I want कि आप सबको इसकी समझ आए, proper समझ आए. So because of that, I would use some Urdu as well. Okay, so the theory was introduced by Jacques Derrida in the late 1960s and became a major influence on literary studies during the late 1970s. In our daily lives, most of us take language for granted, assuming that it communicates what we want it to, and if it doesn't, we assume that the fault is in ourselves, not in language. कि यूजुअली हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं दैट वट एवर वी आर सेइंग इट वुड बी अंडरस्टूड. कोई उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, लेकिन देर आर सर्टेन सिचुएशन जिसमें हमारी बात को लोग बहुत गलत ले लेते हैं, या हमारी बात को समझ नहीं पाते, या कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, या कोई अगर हमारी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहीं कोट कर दे या उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दे, सो एवरीथिंग कैन cause a lot of misunderstandings. Even a single word, if it is changed, एक लफ्ज़ के बदलने से भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है, बहुत उसमें कन्फ्यूजन बन सकती है. According to Derrida, language is not the reliable tool of communication we believe it to be, but rather a fluid, ambiguous domain of complex experience in which ideologies program us without our being aware of them. अच्छा, जो डिकन्स्ट्रक्शन के जो फादर हैं डेरेडा, उनका ये ख्याल है कि वैसे तो वी थिंक कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी रिलायबल और गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन उनके ख्याल में इट्स नॉट एज रिलायबल एज वी थिंक, बिकॉज इसकी वजह से काफ़ी जो है कन्फ्यूजन अक्सर बन जाती है. एंड ही इज़ ऑफ द व्यू के वी कैन नॉट से कि द फॉल्ट इज़ इन अस. लैंग्वेज में ही इतनी एम्बिग्विटीज़ हैं कि वी कैन नॉट से कि अक्सर हम वी स्टार्ट टू थिंक कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया या कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई है या कोई कन्फ्यूजन हो गई है, तो दिस इज़ बिकॉज वी आर रॉन्ग, बट usually this is because of the ambiguity of the language. Derrida is of the view that language is so ambiguous, so confusing, and it is so fluid that it changes from time to time, that it is very reasonable that confusions are made. And then he is also of the view that languages compel us to have certain ideologies. कैसे कि let's suppose if you are an English, सो इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी ऐसी लैंग्वेज बनी हुई है, ऐसे टर्म्स और वोकेबलरी हैं दैट यू हैव अ सर्टन सेंस ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ सीइंग द वर्ल्ड. अगर आप पठान हो तो आपकी लैंग्वेज ऐसी बनी हुई है कि यू व्यू द वर्ल्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर देन एन इंग्लिश पर्सन. एंड इफ़ यू आर एन उर्दू स्पीकिंग पर्सन, तो आपका देखने का, दुनिया को देखने का नज़रिया आपकी लैंग्वेज की वजह से डिफरेंट होगा, but you are not even aware that your language is making you follow certain ideologies. Because we are so used to everyday patterns and rituals in which language seems to work the way we want it to, we assume that it is by nature a stable and reliable means of communicating our thoughts, feelings and wishes. This means कि हम लैंग्वेज जो है इतना जो है कॉमनली यूज़ करते हैं, हम जो है वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड हम ये सोचते नहीं हैं कि दिस कैन कॉज सम कन्फ्यूजन, और दैट इट कैन बी अनस्टेबल, और दैट इट कैन नॉट बी प्रॉपरली अ रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग. हमें बस यही लगता है कि लैंग्वेज इज़ द प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट देयर आर सो मैनी एम्बिग्विटीज़ इन इट. According to Jacques Derrida, that we are apt to have misunderstandings and ambiguities and confusion. So as you
saw in the heading that this theory is also called post-structuralism. So obviously it has come from the theory of structuralism that we had studied previously in the class. But let's discuss some of the basic concepts of structuralism. Structuralism was based on Ferdinand de Saussure's idea of a sign, signifier and signified, as shown in the diagram. We have a sign which is composed of a signifier and a signifier. Signifier means the signifier means the sound of the word, the image of the word, the written expression of the word, and signified means the concept which comes in our mind when we use a signifier. So a word is a linguistic sign. For example, if the sign is the word rose, then the signifier is the group of letters written or pronounced as a unit rose, and the signified is the rose you picture in your mind. So whenever I say the word rose, और when you listen to the word rose, तो आपके जहन में एक पिक्चर आती है या एक कंसेप्ट बनता है, एक आइडिया आता है, तो that thing is a signified. Of course, in response to the signified rose, different people will probably picture different kinds of roses, and for some people, both of the above signifiers, rose and red rose, will produce the same signified, because these people always picture roses as red roses unless prompted to do otherwise. के यूजुअली अगर आप किसी को ये वर्ड बताओ, ये सिग्निफायर बताओ रोज़, तो उनके जहन में जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोजेस ही आएंगे, और यूजुअली उनके जहन में जो है रेड रोज़ ही आएगा, क्योंकि देयर इज दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इन आवर माइंड्स कि अगर रोज़ है तो इट इज़ गोइंग टू बी रेड, लेकिन उनके जहन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोजेस आएंगे. ठीक है, किसी के जहन में एक टाइप ऑफ रोज़ आएगा, किसी के जहन में एक दूसरी किस्म का रोज़ आएगा. So this was the basic concept of structuralism that was defined by Ferdinand de Saussure. To understand what deconstruction is, we'll read this story. It is a very short story. It is flash fiction. It says that the spring was having a normal position over the table. Someone came and compressed it as hard as one could so that it could be packed inside a safe box. The spring felt suppressed inside the safe box. The moment the box opened, the spring sprang open. The enormity of the freedom against the so-called safety of the safe box was beyond the spring's expectations. It jumped out of the box and moved here and there in mirth. People thought it had lost control. People began to suspect its normality. It was suppressed in the safe box again. So this is a short story, a very short story. ठीक है, जिसमें एक छोटी सी आपको जो है एक स्प्रिंग की कहानी बताई हुई है. ठीक है, कि कैसे जो है उसको कंप्रेस करके एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, और फिर उसके साथ क्या क्या होता है. बॉक्स ओपन होता है और फिर उसके साथ क्या होता है. अच्छा, whenever you read this story, you will have a particular idea कि ये स्टोरी जो है ये किस चीज़ को बयान कर रही है. अब राइटर ने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है, उन्होंने कि अपने परसेप्शन से लिखी होगी, उनके जहन में कोई बात होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, और उनके माइंड में कोई और आइडिया होगा जो वो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रही हैं. ठीक है, लेकिन आप खुद क्या समझ रहे हैं. ठीक है, दैट शोज द एम्बिग्विटी ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज अगर लैंग्वेज एम्बिगुअस ना होती, लैंग्वेज में कन्फ्यूजन ना होती, तो फिर अगर राइटर ने जो भी लिखा है, द रीडर शुड अंडरस्टैंड इट इन द सेम मैनर. बट इफ़ द रीडर इज़ गिविंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, दैट मीन्स के लैंग्वेज हैज़ अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटीज, एंड people deconstruct their literary pieces or language according to their own thoughts or time periods or in whatever context they are living. So these are some of the responses that I noted from my students. उनसे मैंने पूछा था कि इसी स्टोरी को पढ़ के वो मुझे रिस्पॉन्स दे कि वो उनको क्या लगता है कि स्टोरी में क्या है. तो मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए थे, लेकिन दीज आर 3 रिस्पॉन्सेज जो मुझे एक दूसरे से थोड़े से अलग लगे. सो दैट इज़ वाई आई हैव मेंशन देम. अच्छा, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज, in my opinion, spring here symbolized new things or new thoughts. So this story is about
to the compression of thoughts, and it's referred here that all was going good with new ideas, but some authoritative one pushed it away to imprison them, and all joys of spring had stopped. Meanwhile, as they get rid of the prison, they come with extreme joys more than before. As a matter of fact, new ideas are not easily accepted for people, so that it wasn't either praised by the people nor was likable for them, because that spring revolution of thought once again suppressed and being imprisoned. अच्छा, इस रिस्पॉन्स में जो स्टूडेंट है उनका ये मानना है कि द स्प्रिंग सिंबलाइजेज न्यू आइडियाज़ और रेवोल्यूशनरी थॉट्स, ठीक है। उनका एक अपना माइंडसेट है और वो उन्होंने अपने माइंडसेट के मुताबिक जो है, जो उनके आइडियाज़ हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये अपना ओपिनियन दिया है कि द स्प्रिंग हेयर सिंबलाइजेज न्यू आइडियाज़ और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, और उनको जो है बॉक्स में सप्रेस किया जा रहा है और पीपल रिडिक्यूलिंग दैट पर्सन और द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। एंड तब यही वजह है कि जब भी कोई नए रेवोल्यूशनरीज आते हैं उनको अमूमन जो है बंद कर दिया जाता है या उनको रिडिक्यूल किया जाता है या उनको पागल समझा जाता है। तो इस स्टोरी में उनके मुताबिक ऐसा ही हुआ। अच्छा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है उसमें ये स्टूडेंट कह रही हैं कि इन माई ओपिनियन द राइटर कंपेयर स्प्रिंग विद अ ह्यूमन, एज आर एल्डर्स वांट्स टू कीप अस सेफ, सो दे रिस्ट्रिक्ट अस एज मच एज दे कैन, एंड ह्यूमन इज बाय नेचर फ्रीडम लवर एंड वांट्स नो रिस्ट्रिक्शन एंड imprisonment, so human came out with tyranny, and then elders wants to keep us normal again, and they again start restrictions over us that do that and don't do that, and don't let us to choose and live our lives by ourselves, and then again put them into that prison. अच्छा, इसमें जो है एज यू माइट हैव अंडरस्टूड कि जो इसमें रिस्पॉन्स है उनके मुताबिक, स्टूडेंट के मुताबिक यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ये कहना चाह रही है कि जो स्प्रिंग है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है और जो बॉक्स है वो एल्डर्स की रिस्ट्रिक्शंस को प्रेजेंट करता है। शी इज़ ऑफ द व्यू कि ह्यूमन बाय नेचर उनको जो है आज़ादी पसंद है, उनको फ्रीडम पसंद है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं दे आर वेरी कंसर्न अबाउट अस, और अपनी प्रोटेक्टिवनेस की वजह से वो हमेशा हम पे और रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। देन वी हैव अ थर्ड रिस्पॉन्स जिसमें स्टूडेंट कह रही हैं, आई थिंक मैम इट इज़ अबाउट आवर अनकॉन्शियस माइंड दैट वी हैव सप्रेस्ड आवर ट्रबल्स एंड वन डे इट बिकम डिसऑर्डर एंड एक्सपोज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर, एंड देन वी विल ट्राई टू कंट्रोल दैट बिहेवियर एंड ट्राई टू हील इट अगेन एंड सेव इट एज पॉजिटिव एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट का ये मानना है कि ये हमारे जो है जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो बाद में हमारे लिए ट्रबलसम बन जाते हैं, तो द स्प्रिंग बेसिकली रिप्रेजेंट जो सप्रेस्ड इमोशंस की जिनको हमने सप्रेस कर दी और जब भी वो खुलकर सामने आते हैं वो अमूमन जो है बहुत ज़्यादा एक डिसऑर्डरली तरीके से सामने आ जाते हैं और दे बिकम डिसऑर्डर्स। लेकिन फिर हम जो है अपने बिहेवियर्स को और अपने डिसऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसी की वजह से एक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बन जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली डीकंस्ट्रक्शन की जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टोरी को अपने अपने तरीक़ों से डीकंस्ट्रक्ट किया है, उन्होंने अपने अपने तरीक़ों से अपने रिव्यूज़ दिए हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग दी है। अच्छा, देन आई आस्क द स्टूडेंट्स certain words जैसे solitude, ocean, moon, bread and quarantine, and I asked them कि आप इन वर्ड्स को देख के आपके जहन में क्या आता है आप हमें वो बताएं। तो द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल, जो मेरा व्यू था, जैसे सॉलिट्यूड वर्ड को जब मैंने देखा तो मुझे ओन कंपनी, लाइक आई लव माई कंपनी, सो दिस वॉज माई रिस्पॉन्स। ओशन को देख के पीस, मून को देख के ब्राइटनेस, रेड को देख के रोज़ जहन में आया क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग द लेक्चर, तो उस वक्त मेरे जहन में रोज़ आया। क्वारंटीन, कॉलेज, क्योंकि आई मिस कॉलेज दीज डेज वेयर आई यूज टू टीच, सो दैट इज़ वाई मेरे जहन में क्वारंटीन की वजह से कॉलेज आया। जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का था उसमें एक सॉलिट्यूड के लिए एक स्टूडेंट ने कहा कि सिटिंग अलोन एंड इंजॉइंग वंस कंपनी, लेकिन दूसरी स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, इनर एम्प्टीनेस, तीसरी ने कहा मोस्ट पीसफुल मोमेंट, एंड द फोर्थ वन सेट सकून। सो एवरी वन सॉ द वर्ड इन अ डिफरेंट मैनर, मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम took it in a positive manner, only one student saw it in a negative light. So that is because of the differences of experiences. We cannot say that one student is wrong and the other is right, all of them are correct. Then for ocean, someone said fear, some said water phobia, some said one of my favorite scene in Khani drama, this is a Pakistani drama, and some said walking
besides the bang. So these are the different reviews or responses of the students to these words. Then we have moon, some say brightness, beauty, brightness of the stars in the night light, etc. I would advise कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग आप ये responses आप read कर लें तो आपको difference पता चल जाएगा कि there are similarities but there are also differences in the responses of each student. So coming back to the topic, human utterances are rarely, if ever, as clear and simple as the structuralist formula signifier plus signified seems to imply कि जो हमारी एक ह्यूमन हमें स्ट्रक्चरलिस्ट ने ये बताया कि हमें जो है हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे जहन में सिमिलर जो है कंसेप्ट आते हैं. जैसे रोज़ अगर हमने देखा तो हमारे जहन में सिर्फ एक रोज़ ही आएगा और डिफरेंट किस्म के रोजेज़ ही आएंगे. लेकिन अगर आप यहाँ पे ये डिफरेंट अगर आप ये स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज देखें तो उसमें जो है एक मेरा था रेड को देख के मैंने बोला रोज़, एक स्टूडेंट ने कहा कि ब्यूटीफुल रेड ड्रेस और दूसरे ने कहा लव बिकॉज रेड इज़ कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ लव इन मैनी कम्युनिटीज़ एंड अनदर स्टूडेंट also said rose. These are the different responses of the different student. That means कि हमारे पास signified तो एक ही था, red था, लेकिन हमारे पास signifieds जो हैं वो ज़्यादा थे. हमारे जहन में जो concepts थे वो सिर्फ red को देख के एक ही चीज़ नहीं आई, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आई. अच्छा, as we have seen, any given signifier can refer to any number of signifiers at any given moment, and although context often helps us to limit the range of possible signified for some signifiers, it simultaneously increases the range of possible signified for others. That is why communication is such a complicated and uncertain thing. If we stopped at this point, we could rewrite the structure formula as sign equals to signifier plus signified and इन्फिनिट signifieds. ठीक है, अब अगेन वही बात है कि स्ट्रक्चरलिज्म ने ये कहा या फर्डिनेंड डी सोशोर ने ये कहा कि साइन कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफायर एंड अ सिग्निफाइड. लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं या जो रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी वाले हैं उनका ये मानना है कि एक साइन में अगर सिग्निफायर एक है तो उसमें पास हमारे पास सिग्निफाइड ज़्यादा होते हैं. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये क्वारंटीन वर्ड है उस पर किसी ने कहा कॉलेज, किसी ने कहा हॉस्पिटल वार्ड्स, किसी ने कहा वर्स्ट थिंग आई एवर फेल्ट, किसी ने कहा कोरोना कोविड-19 और किसी ने कहा चिल. सो दीज आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, डिफरेंट सिग्निफायर्स ऑफ द वर्ड क्वारंटीन. हमारे पास जो है सिग्निफायर वो क्वारंटीन है और सिग्निफाइड्स हमारे पास डिफरेंट है. ठीक है, या फिर अगर आप ये ओशन वाला देख लें तो ओशन में यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी कि उसमें पीस भी है, फियर भी है, वाटर फोबिया भी है, फेवरेट सीन इन खानी ड्रामा वॉकिंग ऑन द बैंक. ये डिफरेंट आपके रिस्पॉन्सेज हैं. तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का ये मानना है कि हमारे पास सिग्निफायर अगर एक है तो हमारे पास जो सिग्निफाइड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट हमारे पास ज़्यादा होते हैं. अच्छा, एग्जाम्पल्स, ड्रामाज इन विच women are depicted as bicharis are viewed as regressive by liberals and progressive by conservatives. They might be others who might chalk out an in-between idea. बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं अगर वो आप देखें तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जब औरतें, ज़्यादातर औरतों को जो है बिल्कुल वो बेचारी किस्म का शो किया हुआ है. ठीक है, तो अगर लिबरल्स वो ड्रामा देखेंगे तो उनका ये मानना, वो ये कहेंगे कि ये बहुत जो है रिग्रेसिव ड्रामा है और जो उसमें फीमेल लीड्स हैं दे आर वेरी रिग्रेसिव. लेकिन अगर कंजर्वेटिव्स या कोई एक्सट्रीमिस्ट वो देखें, कोई रिलीजियस स्कॉलर्स वो ड्रामा देखें तो दे विल से कि नहीं, जो बेचारी वाला एटीट्यूड इनका है ये बिल्कुल ठीक है. फिर इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, अगर हमारे पास ये कैरेक्टर ऐसे ऐसे हो, इस जगह पे वो स्ट्रांग हो और इस जगह पे जो है वो ज़्यादा आउटस्पोकन ना हो, तो दैट पर्सन इज़ अ बेटर पर्सन, दैट इज़ मोर प्रोग्रेसिव एंड दैट इज़ नॉट रिग्रेसिव. ये हर बंदे के कंटेक्स्ट के मुताबिक, एक्सपीरियंसेस के मुताबिक एक अलग जो है सिग्निफाइड या एक अलग जो है परसेप्शन होता है. ठीक है. Another example is that blunt and outspoken women are often depicted as negative in Pakistani dramas. For instance, Miral from Sabat and Daneen from Ana. ये दो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं. ठीक है, सबात आजकल एक ड्रामा चल रहा है जिसमें मिराल का जो कैरेक्टर है उसको वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट लड़की है, बहुत आउटस्पोकन है, ब्लंट है, तो उसको जो है बड़े नेगेटिव लाइट में शो किया है. लेकिन उसी तरह जो है दानीन का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत वो ब्लंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
तो उनके कैरेक्टर को भी समहाउ एक नेगेटिव लाइट में जो है उस ड्रामा में शो किया हुआ है। अच्छा, डीकंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हो, तो वो थोड़ा सा इस दो वीडियोस है, सेम म्यूज़िक है हमारे पास, लेकिन वीडियो कंसेप्ट दोनों वीडियोस में जो है वो डिफरेंट है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़। अच्छा, सो एज यू हैव सीन कि दोनों वीडियोस में जो आपके पास जो म्यूज़िक है वो सेम है, लेकिन एवरी पर्सन इज़ डीकंस्ट्रक्टिंग इट इन देयर ओन मैनर। तो दोनों वीडियोस में जो है म्यूज़िक सेम है, बट जो वीडियो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। दोनों ने अपने तरीके से जो है उस म्यूज़िक को आपके सामने प्रेजेंट किया है। सो अगेन लेट्स सपोज अगर हम ये कहें कि हमारे पास म्यूज़िक जो है वो हमारे पास सिग्निफायर है, तो जो वीडियो है जिस तरह से उसको बनाया गया है वो हमारे पास सिग्निफाइड है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही म्यूज़िक का, एक ही सिग्निफायर का के दो सिग्निफाइड्स आ गए, ठीक है। जो टिकटॉक आजकल यूज़ करता है, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि एक ही जो है म्यूज़िक पे या एक ही जो है आपके डायलॉग पे डिफरेंट वीडियोज़ डिफरेंट कंसेप्चुअल तरीक़ों से बनाए जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। अच्छा, difference is an important concept of deconstruction. Deconstruction thus offers a radical vision of the activity of thinking. Our mental life consists not of concepts, not of solid stable meanings, but of a fleeting, continually changing play of signifiers के हमारे जहन में जो एक एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग चल रही है वो रेडिकल जो है वो एक फिक्स नहीं है। हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो फ्लूइड हैं, वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप एक मूवी है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाई थी, वंडर एक मूवी है, एक बच्चे की कहानी है जिसमें उसकी जो स्टोरी है उसको डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से शो किया हुआ है, ठीक है। तो अब उसमें एक कैरेक्टर है मिरांडा जो हमारा मेन हीरो है ऑगी, उसकी बहन विया की वो फ्रेंड है। मिरांडा जो है वो विया की फ्रेंड है, और शुरू में जब हम मिरांडा को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो बहुत ही पूरी या एक नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि हम उसको विया की नज़र से देखते हैं। विया को ये लगता है कि शायद मिरांडा जो है उसने उसको छोड़ दिया है, या शी डज नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर एनी मोर, तो हमें वो एक नेगेटिव लाइट में नज़र आती है। लेकिन जब हम स्टोरी को मिरांडा की पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मिरांडा जो है वो विया के सामने खुद को लो फील करती है, इसलिए वो उससे दूर भाग रही है। सो हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, इट कीप्स चेंजिंग किसी ना किसी वजह से। हमारे जो सिग्निफायर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अच्छा, these signifiers may seem to be stable concepts. They look stable enough when we hear them spoken or see them written down, but they don't operate in a stable manner in our mind. कि हमारे जहन में अगर signifier एक है तो signified हमारे हमेशा जो है वो fluid होते हैं, they keep changing. Derrida uses the word difference, which combines the French words to differ and to differ. Differ means something which is different and differ means something which continues। कि differ में ये होता है कि वो ऐसी चीज़ जो differ करती है, और differ वो कि जो continue करती है। So difference means language is something which keep changing with some continuation। जैसे हमने रोज़ वाली एग्जाम्पल देखी तो उसमें जो है हमने ये देखा, बल्कि वो रेड कलर का एक जो हमने एग्जाम्पल लिखा था उसमें यही है कि देयर वर सम सिमिलैरिटीज़ जो डिफरेंट आपके स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस थे, लेकिन उसमें कंटिन्यूएशन थी, डिफरेंसेस थे लेकिन कंटिन्यूएशन भी थी। या फिर अगर वो स्टोरी वाली बात अगर हम कर लें जो हमने डिस्कस की थी स्प्रिंग वाली, तो उसमें कॉमन चीज़ जो थी वो सप्रेशन थी, चाहे वो फैमिली की सप्रेशन हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की सप्रेशन हो, या चाहे
वो जो है जो तीसरी थी कि थॉट्स की सप्रेशन हो या फीलिंग्स की सप्रेशन हो, तो डिफरेंसेस हैं लेकिन कंटिन्यूएशन भी है, एक आपके जहन में स्ट्रक्चर आपका सेम ही है, ठीक है। अच्छा, मीनिंग कीप्स चेंजिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस। फॉर इंस्टेंस द रिस्पॉन्स टू सॉलिट्यूड विद वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक ओन कंपनी, सिटिंग अलोन, enjoying one's company, inner emptiness, most peaceful moments, सुकून shows sitting alone। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन ये जो डिफरेंट आपके रिस्पॉन्सेज थे वो शो कर रहा है कि कंटेक्स्ट के मुताबिक आपकी मीनिंग जो है या आपका परसेप्शन जो है वो चेंज होता रहता है, या आपका जो सिग्निफाइड है वो चेंज होता रहता है। अच्छा, different people will see the same character with different lens. Example, Harry and Voldemort are epitomes of evil and good, but Harry can be seen as a normal or grey character. Critics even say that Harry seems to be feminine. Others see this fluidity in a positive light. कि हमेशा जो है अक्सर जो है हम एक कैरेक्टर को ज़रूरी नहीं है कि हम उनको जो है एक ही नज़र से देखें, बल्कि अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन यू माइट सी द कैरेक्टर्स इन डिफरेंट लाइट। फॉर इंस्टेंस, हैरी पॉटर जो नॉवल है उसमें हैरी एंड वोल्डेमॉर्ट को एपिटमीज और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गुड एंड इविल शो किया। हैरी इज़ गुड एंड वोल्डेमॉर्ट इज़ इविल, बट अगर आप दोनों को स्टडी करें, आप उनकी लाइफ को स्टडी करें, तो यू माइट से कि हैरी इज़ अ ग्रे पर्सन और वोल्डेमॉर्ट को हम इविल ही कंसिडर करते हैं। बट इफ़ यू सी हिज पास्ट लाइफ तो आपको उस पर तरस आना लगता है। यू इवेंचुअली फील कि नहीं, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज थी जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया। सो योर परसेप्शन कीप्स चेंजिंग अबाउट इट एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस। देन क्रिटिक्स, some male critics are of the view कि जो हैरी का कैरेक्टर है वो somewhat it is feminine, वो masculine नहीं है। तो ये भी जो है डिफरेंट जो है क्रिटिक्स के आइडियाज़ हैं वो अपने नज़रिए से उसको जो है एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। फिर हैमलेट एक प्ले है जिसमें अगर आप उसमें देखें तो उसमें एक a ghost appears in that play, तो critics have also been in conflict about it कि वो जो ghost आया था वो रियल था भी या नहीं था। there are different views and this is all because of difference. then many of you have seen these dramas अना एंड यकीन का सफ़र। दोनों में जो है अगर आप कैरेक्टर्स को देखें, जैसे अल्तमश का कैरेक्टर है उनको अगर आप शुरू में देखें तो वो बहुत इविल लगते हैं एज मिस्टर डार्सी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, लेकिन with the passage of time your perception of the character starts to change और you might say कि अल्तमश का कैरेक्टर खुद ही चेंज होना शुरू हो जाता है, उनमें काफ़ी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। फिर यकीन का सफ़र में जो डॉक्टर असफंदियार का कैरेक्टर है, शुरू में वो एक बड़े जॉली और पॉजिटिव इंसान होते हैं, लेकिन जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता करके ईवल हो जाते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। पहले वो म्यूज़िक प्ले करते हैं, बाद में वो ट्रेजेडीज़ की वजह से म्यूज़िक प्ले करना भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द ड्रामा because of some positivity in his life, he again starts to play music, he again starts to sing and play his guitar, and he again starts to become a good person या positive person या a jolly person. Another very important concept that has been discussed by Derrida is binary opposition. It was a structuralist idea, ठीक है। We had discussed this in structuralism कि उसमें ये है कि जो फर्डिनेंड डी सोशोर हैं, he was of the view that the world is divided in binary things. There are opposite things or pairs of opposite things such as day and night, man and woman, inside, outside, presence, absence, speech, writing, etc. Deconstruction rejects binary opposition. According to deconstruction, binary opposition does not exist. Deconstruction या डेरिडा का ये मानना है कि बाइनरी ऑपोजिशन वाली कोई चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। हमें सिर्फ इसी को जो है इसी की बेस पे हमें दुनिया को नहीं देखना चाहिए। देयर आर ग्रे एरियाज एज वेल। हम ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, बल्कि देयर आर ग्रे एरियाज। The problem with a binary system of binary opposites is that it creates boundaries between groups of people and leads to prejudice and discrimination. One group may fear or consider a threat the opposite group refer to as the other. The use of binary opposition in literature is a
that authors use to explore differences between groups of individuals such as cultural, class or gender differences as them in post-colonial literature is an example of binary opposition के बाइनरी ऑपोजिशन का मेन इशू ये है कि ये इसकी वजह से जो है डिस्टिंक्शन बन जाती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं. लेट्स सपोज अगर मैन एंड वुमन का कंसेप्ट है वो बाइनरी ऑपोजिशन की वजह से ही आया है. अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है इसको डिस्कस ना करें या बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट ना करें तो शायद वो मैन और वुमेन का एक कंसेप्ट है वो ज़्यादा हाईलाइट हो ही ना, वो डिफरेंसेस कभी आए ही ना. जैसे आजकल आप लोग ड्रामा देख रहे होंगे एट द रोल, काफ़ी आजकल फेमस हुआ है. उसमें जो है अगर आप नोट करें तो उसमें औरतें जो हैं वो भी जंग में हिस्सा अक्सर ले रही होती हैं, वो भी तलवार का इस्तेमाल कर रही होती हैं. तो उसमें जो है बेशक वो घर के काम कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि उसमें इतना इस जेंडर डिफरेंस को इतना हाईलाइट नहीं किया हुआ, उसमें इतना ज़्यादा जो है इस चीज़ को नहीं खींचा गया, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा जो है हाईलाइटेड लगती नहीं है, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस लगते नहीं हैं. तो द मोर यू ट्राई टू क्रिएट सच बाइनरी ऑपोजिशन, द मोर यू make induce fear और make one group a threat to the other group. जैसे अब मैन वुमेन का एक ये डिफरेंट बाइनरी ऑपोजिशन बना हुआ है, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप बाज़ार जाएं तो वहाँ पे ब्लू चीज़ें जो हैं वो अमूमन लड़कों के लिए होती हैं और पिंक जो है वो लड़कियों के लिए होती हैं. तो जितनी ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी उतना ही उनमें जो है डिफरेंसेस वो आते जाएंगे, और फिर जो है उसमें हमेशा बाइनरी ऑपोजिशन में ये होता है कि एक ग्रुप जो है उसको दूसरे ग्रुप पे हमेशा हावी कर दिया जाता है. जैसे डे नाइट है तो डे को जो है वो हमेशा अच्छा कंसिडर किया जाता है. मैन वुमन है तो हमेशा जो है मेन जो है उनको बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की उनको अच्छा कंसिडर किया जाता है, और औरतों को जो है बहुत वीक कंसिडर किया जाता है. फिर अगर आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर देखें तो उसमें हमेशा एक अस एंड देम का कंसेप्ट होता है जिसमें वाइट्स एंड नॉन वाइट्स को शो किया जाता है, और हमेशा उसमें जो है वाइट्स को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है और जो नॉन वाइट्स हैं या ब्लैक पीपल हैं या ब्राउन पीपल हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड इन्फीरियर. तो बाइनरी ऑपोजिशन ऑलवेज क्रिएट fear and threat among the two groups which have been highlighted. अच्छा, the binary opposition has been depicted in the following videos. Let's see these. अमीरों का रोने का स्टाइल. और हमारा अच्छा तो आपको इंजेक्शन लगना है, सांस निकालो. बहुत आराम से, मैंने कभी टीका नहीं लगाया. आराम से सब आराम से. आपको इंजेक्शन लगना है. ला ला जो भी लगना है, कितने लगना है. और डरन का तो नहीं है, सुई है तुम कहाँ डरन के दोनों सुई नु कहाँ ढिला. अच्छा, अगर दोनों वीडियोस में देखा जाए तो फर्स्ट वीडियो है उसमें अमीर और गरीब का एक डिफरेंस शो किया हुआ है. अमीर को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड शो किया हुआ है और जो गरीब है उनको बिल्कुल ही जाहिल किस्म का. फिर नेक्स्ट वीडियो में शहरी लोग और गांव के लोग. अब वैसे भी तो हो सकता है कि शहर में अमीर और गरीब दोनों ही हों, लेकिन अगेन शहरी लोगों को जो है एक डिफरेंट लाइट में शो किया हुआ है और जो गांव के लोग हैं उनको एक डिफरेंट लाइट में शो किया हुआ है. लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो अगर आप अमीर और गरीब भी देखें तो ज़रूरी नहीं है कि एक जो है कुछ बिल्कुल अमीर हो और कुछ बिल्कुल गरीब हो, बल्कि उसमें हमेशा कोई ना कोई ग्रे एरिया होता है, कोई ना कोई सब में डिफरेंस होता है. यू कैन नॉट से कि अगर ये बंदा जो है ये गरीब है तो वो ऐसे ही रोएगा, या अगर ये गाँव का बंदा है तो वो ऐसी हरकतें करेगा या ऐसी जाहिलाना हरकतें करेगा. अगेन these two videos. Johnny, What's that? I need you to get up for school now. Come on, Johnny. Don't leave me alone. I'll get whatever I want. Johnny, we have breakfast ready. We need you to get up now. Get out. What am I going to do with this kid? Hamza, Gee, उठो, स्कूल का टाइम हो गया है. how about 10 minutes? वो बेटा 10 मिनट चाहिए. Gee, चलो सो जाओ. 10 minutes, no problem. 10 मिनट चाहिए इस बगैरत को. अभी देखो. चलो बगैरत. 10 मिनट खत्म हुए, चलो उठो. अमीरों का विलन.
और हमारा। अच्छा, अगेन इस वीडियो में यही है कि अंग्रेज़ों और जो अंग्रेज़ और वाइट्स हो गए, नॉन वाइट्स का डिफरेंस शो किया हुआ है, और फिर अगेन रिच एंड पुअर का। तो अगेन वो इतना स्टार्क डिफरेंस है कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में जो है वाइट को जो है वो सुपीरियर बना दिया है, और जो ब्राउन्स हैं उनको इन्फीरियर कंसिडर कर दिया गया है। और जो दूसरी वीडियोज़ में अगेन जो है जो रिच पीपल हैं दे हैव बीन मेड सुपीरियर एंड द पुअर पीपल आर मेड इन्फीरियर्स, बट in reality that is not the case. ये binary opposition हमारे जहन में इतनी entrenched हो गई है that we might see things like that, but the reality is different from that. There are gray areas in between. अच्छा, deconstruction basically believes in the grayness of things. Humans are both evil and good. There is not just black and white in the world. The 24 ये एग्जाम्पल है कि the 24-hour duration consists of morning, noon, afternoon, as them in। अच्छा ठीक है, डिकंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली ग्रेनेस ऑफ थिंग्स को देखती है। जैसे ये यहाँ पे कलर पैलेट्स जो यूज़ हुए हैं डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन कलर्स के डिफरेंट शेड्स हैं, तो रियलिटी भी वैसे ही होती है। ये नहीं है कि बस ब्लैक है और वाइट है, ऐसा नहीं होता। ये बाकी कलर्स में भी आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंट शेड्स हैं। तो ह्यूमन कैरेक्टर्स और हमारी लाइफ्स जो हैं, हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, या अगर आप कोई लिटरेचर का पीस पढ़ो तो उसमें भी जो है एक ग्रेनेस होती है। आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है ये ऐसे ही होगी। जैसे हमने वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी तो उसमें हर बंदे ने उसको अपने तरीके से डिकंस्ट्रक्ट किया। राइटर का अपना ही एक व्यू था, ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने तरीके से उसको डिकंस्ट्रक्ट किया। तो दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ग्रेनेस ऑफ थिंग्स। उसमें बाइनरी ऑपोजिशन कहीं भी नहीं आती। फिर ये जो मॉन्स्टर हैं, फ्रैंकेनस्टाइन एक नॉवल है, उसमें एक मॉन्स्टर है जो व्हेन ही इज़ बॉर्न, तो जो उसका क्रिएटर होता है फ्रैंकेनस्टाइन, ही अबंडेंस हिम। तो जब मॉन्स्टर बेसिकली जब वो ही टेक्स बर्थ, तो वो एक बड़ा अच्छा इंसान होता है, वो ईविल नहीं होता। हमेशा हम जब भी फ्रैंकेनस्टाइन का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ईविल आता है, लेकिन अगर आप उसके कैरेक्टर को स्टडी करो तो यू विल नो कि वो ईविल नहीं था, बल्कि उसने ठीक है बाद में बहुत ज़्यादा मर्डर्स वगैरह किए थे, लेकिन शुरू में ही वॉन्टेड टू बी एक्सेप्टेड, ही वॉन्टेड पीपल टू लव हिम, लेकिन नोबडी एक्सेप्टेड हिम क्योंकि वो देखने में बहुत अजीब लगता था। एक हैवान किस्म का दिखने में वो वैसा था, लेकिन अंदर से वो ऐसा नहीं था। और यही वजह है कि उसको इतना जो है लोगों ने टॉर्चर किया मेंटली कि ही इवेंचुअली बिकेम एन इविल पर्सन। अच्छा, फॉर डेरिडा even deconstruction is not an opposition to previous ideas but a difference। कि डेरिडा के मुताबिक deconstructionism भी ये नहीं है कि वो उन्होंने structuralism को oppose नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसमें एडिशन की। उन्होंने कहा कि ये जो है एक डिफरेंस है। जैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि साइन, जो स्ट्रक्चरलिज्म का फॉर्मूला है कि साइन इज़ इक्वल टू सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर, उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस साइन इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बल्कि उन्होंने ये कहा कि साइन इज़ इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड प्लस सिग्निफाइड प्लस सिग्निफाइड, कि उसमें जो है इन्फिनिट हमारे पास सिग्निफायर्स आते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस। It gives a reader the authority to view a text according to his/her view and deconstruct the ambiguities in the text। के बाइनरी ये deconstruction का फ़ायदा ये है कि रीडर को जो है आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप जो है जो टेक्स्ट है उसको अपने नज़रिए से आप deconstruct कर सकते हो, आप अपना उसका नज़रिया बता सकते हो। फिर to reveal a text undecidability is to show that the meaning of the text is really indefinite, undecidable, plural, conflicting array of possible meanings, that the text therefore has no meaning in the traditional sense of the word at all। के हम जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो जैसे हमने वो शॉर्ट स्टोरी देखी तो उसमें हमारे पास एक मीनिंग उससे जनरेट नहीं होता, बल्कि हमारे पास डिफरेंट मीनिंग जो है वो जनरेट होते जा रहे हैं। देयर वर मेनी रिस्पॉन्सेज टू दैट स्टोरी, लेकिन ड्यू टू द लिमिटेशन मैंने सिर्फ उसमें 3 रिस्पॉन्सेज डाले जो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगे, लेकिन देयर वर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज टू दैट स्टोरी। तो बेसिकली यही जो है डिकंस्ट्रक्शन का मानना है कि हम जब किसी चीज़ का मीनिंग निकालते हैं, लैंग्वेज में एम्बिग्विटी इसी वजह से आती है कि हम एक चीज़ का सेम जो है वो सिग्निफाइड जो आपके पास है वो एक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं या पोइम भी पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा मीनिंग्स आते हैं। योर मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कीप्स चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, द कंडीशन ऑफ ब्लैक्स इन हार्ट ऑफ डार्कनेस
The writer depicts them as savages but reveals his own dominating and boastful nature. अच्छा, इस नॉवल में जो है जो एक नरेटर है, बल्कि नॉट राइटर बट द नरेटर जो है ही इज़ अ वाइट, और उसने जो है सैवेजेस ब्लैक्स के बारे में उनको बहुत जो है जाहिलाना अंदाज में उनको डिपिक्ट किया है। आप अगर वो नॉवल पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि ब्लैक्स जो है वो बिल्कुल जैसे वो जानवर हों। अब द थिंग वॉज कि ऑब्वियसली जो कॉलोनाइजर्स थे, जो वाइट्स थे, दे डिड नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ द ब्लैक पीपल, और एंड बिकॉज ऑफ दैट इशू वो उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो इनको ये लगता था कि वो जाहिल हैं। जैसे हम अगर एनिमल्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते तो हम ये कहते हैं कि दे आर इन्फीरियर और लो, बट रियलिटी वॉज फार डिफरेंट फ्रॉम दैट। और जब हम उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें असल में ये हमारे सामने ये जाहिर होता है कि वो जो नरेटर है वो ख़ुद भी एक बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान है और बहुत जजमेंटल इंसान है, कि वो खामखा उनको जो है कुछ जो है इंसिडेंट्स पे वो जज कर रहे हैं, और जो उनकी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको वो हाईलाइट कर ही नहीं रहा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो है सुनो चंदा जो है आजकल बड़ा एक फेमस ड्रामा है, 2 साल काफ़ी चला था ये, ठीक है। उसमें अरसल और जिया के कैरेक्टर्स हैं, दोनों की हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। इस पे भी अगर आप डिस्कशन करें तो कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, अरसल जो है वो ठीक था, जिया गलत थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिया को जो है ना उसको थोड़ा गुजारा करना चाहिए था, वो अच्छी थी, लेकिन अरसल जो है वो ठीक था। तो ये भी आपके जो है वो डिकन्स्ट्रक्शन आपके अपने मुताबिक है, ठीक है। फिर इसके अलावा डॉक्टर जुबिया का कैरेक्टर है, यकीन का सफ़र ड्रामा है, उसमें वो जो है शुरू में शी फॉल्स इन लव विद द रॉन्ग पर्सन हु इवन ट्राइज टू मोलेस्ट हर और हैरेस हर, बट शी इज़ सेव्ड थैंकफुली। लेकिन उस ड्रामा में भी देयर माइट बी पीपल हु जज हर कि वो जो है व्हाई डिड शी फॉल इन द ट्रैप ऑफ दैट पर्सन, और कुछ देयर माइट बी सम पीपल जो कहें कि नहीं, बिकॉज शी हैड लिव्ड अ वेरी सप्रेस्ड लाइफ, तो उसी की वजह से जो है उनका डाउनफॉल हो गया या उनसे ये गलती हो गई। अच्छा, another important concept of deconstruction is logocentrism. This was defined by Derrida in his book called Of Primatology. Of Primatology by Derrida is an examination of the relationship between speech and writing and of the ways in which speech and writing develop as forms of language. According to Derrida, writing has often been considered to be derived from speech, and this attitude towards the relation of speech and writing has been reflected in many philosophic and scientific investigations of the origin of language. However, the tendency to consider writing as an expression of speech has led to the assumption that speech is closer than writing to the truth or logos of meaning and representation. Derrida argues that the development of language actually occurs through an interplay between speech and writing, and that because of this interplay, neither speech nor writing may properly be described as being more important to the development of language. Simply कि डेरिडा का ये मानना था कि हम ये नहीं कह सकते कि जो स्पीच है वो ज़्यादा जो है वो सुपीरियर है। फर्डिनेंड डी सोशोर का ये मानना था कि स्पीच जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बोली जाती है, लेकिन राइटिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट डेरिडा का ये मानना था कि चूँकि लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं, तो वी शुड कंसिडर बोथ ऑफ दीज एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे बोथ कम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर एक चीज़ अक्सर ये आप लोगों ने ख़ुद भी नोट किया होगा कि कुछ लोग जो है वो मैसेजेस में ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल होते हैं, वो मैसेजेस में अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बयान कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स होते हैं जो अगर आंसर लिखें पेपर पे तो पेपर पे वो ज़्यादा अच्छा बयान कर सकते हैं, वो स्पीच में या ओरली वो अपना आंसर अच्छा नहीं दे सकते। तो बोथ बी कंसिडर्ड सुपीरियर। वी कैन नॉट से कि वन थिंग इज़ सुपीरियर ओवर अनदर। यहाँ पे हमें ये बाइनरी ऑपोजिशन नहीं करनी चाहिए कि राइटिंग इज़ नॉट सुपीरियर एंड स्पीच इज़ सुपीरियर। अच्छा, when we are to deconstruct a literary text on the basis of language, we majorly try to find out three things in the text. Example, to find out various ways in which the text doesn't mean what it seems to mean. जैसे अगर हमने वो स्प्रिंग वाली स्टोरी पढ़ी है, वो बज़ाहिर तो वो एक स्प्रिंग की स्टोरी थी, लेकिन हम ये देखना, हम जब पढ़ें कोई टेक्स्ट पढ़ें तो हम उसमें ये देखते हैं कि क्या ये वही चीज़ को उसी चीज़ को जाहिर कर रहा है जो उन वर्ड्स में लिखा हुआ है, या
इज इट रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स। जैसे स्टोरी में जो है वो स्प्रिंग की कहानी थी, एक ऑब्जेक्ट की कहानी थी, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरप्रेटेड इट इन डिफरेंट वेज। किसी ने कहा कि ये सप्रेस थॉट्स हैं, किसी ने कहा कि नहीं दीज आर आइडियोलॉजिकल या रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, और किसी ने कहा कि नहीं द स्प्रिंग रिप्रेजेंट चिल्ड्रन हु आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय देयर पेरेंट्स। अच्छा, टू डिग आउट द मेन थीम और आइडियोलॉजी ऑफ द टेक्स्ट, फिर डीकंस्ट्रक्शन में आप ये देखते हैं कि मेन थीम या आइडियोलॉजी क्या है उस टेक्स्ट में। जैसे उस स्टोरी में जो है सप्रेशन जो है वो एक मेन आइडिया था। अब सप्रेशन ऑफ थॉट्स था, सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन था, या सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ था, या सप्रेशन ऑफ योर प्रॉब्लमेटिक फीलिंग्स था। वो जो है डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन मेन उसमें यही चीज़ थी, सप्रेशन उसका एक मेन जो है थीम था। टू डिस्कवर conflicting element that shows limitations of the ideology, कि कहीं उस टेक्स्ट में ऐसी conflicting चीज़ें तो नहीं हैं जिसमें आपको लगता है कि ये आइडियोलॉजी उसमें जो जाहिर की गई है वो लिमिटेड है, उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो है वाइट इम्पीरियलिज्म को बहुत ज़्यादा शो किया हुआ है, वाइट्स को जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको सुपीरियर शो किया हुआ है और ब्लैक्स को इन्फीरियर शो किया हुआ है। तो वो उनके उस नज़रिए, उस आइडियोलॉजी की बेसिकली फ्लॉज को ही शो कर रहा है, दैट वाई आर दे जजिंग द ब्लैक पीपल, वाई आर दे नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है, वाई आर दे कंसिडरिंग देम इन्फीरियर। इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, दैट डजंट मीन दैट दे आर सैवेजेस और एनिमल्स, सो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दैट आइडियोलॉजी। या अगर आप माई लास्ट डचेस पढ़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो पढ़ी हुई है पोएम, ठीक है, तो उसमें भी यही है कि जो ड्यूक है, जो काउंट है, वो अपनी बीवी की बुराइयां कर रहा है, ठीक है, और वो ये बता रहा है कि शी वाज नॉट अ गुड पर्सन और उसमें ये फ्लॉज थे। लेकिन उसी दौरान जो है हमें असल में पता चलता है कि दैट पर्सन हिमसेल्फ, द नरेटर ऑफ द पोएम हिमसेल्फ इज़ अ बैड पर्सन, ठीक है। तो वो अपनी ही आइडियोलॉजी के साथ वो मैच नहीं कर रहा, वो फ्लॉज तो उसके बता रहा है, लेकिन असल में वो फ्लॉज जो है अपने जाहिर कर रहा है। अच्छा, the goal of deconstructing a text can be accomplished in brief by the following procedure. Note all the various interpretations of characters, events, images and so on the text seems to offer. कि जब भी आप कोई टेक्स्ट उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या अगर आप उसका डीकंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से उसको आप एनालाइज कर रहे हैं, तो आप जो डिफरेंट आपके जहन में इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं, जैसे स्प्रिंग वाली स्टोरी में हमने 3 इंटरप्रिटेशन जो हैं वो हमने नोट डाउन की, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है वो सारी इंटरप्रिटेशन जो हैं जस्ट नोट देम ऑल। फिर शो द वेज इन विच दीज इंटरप्रिटेशंस कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। फिर आप उसमें ये देखो कि कहीं ये जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है इनमें कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, एंड शो हाउ दिस कन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस स्टिल मोर इंटरप्रिटेशन विच प्रोड्यूस स्टिल मोर कन्फ्लिक्ट्स विच प्रोड्यूस स्टिल मोर इंटरप्रिटेशन। तो डीकंस्ट्रक्शन में असल में ये होता है कि एक चेन बन जाती है। लेट्स सपोज हैमलेट की मैंने आपसे बात की, तो उसमें ये है कि शुरू में जो है हैमलेट के शुरू में ही जो हैमलेट के फादर होते हैं उनका मर्डर हो जाता है, एंड देन इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले हैमलेट सीज द गोस्ट ऑफ हिज फादर, जो उसको बताते हैं दैट आई वाज मर्डर्ड बाय योर अंकल एंड यू शुड टेक माई रिवेंज, ठीक है। अब अभी तक क्रिटिक्स में जो है ना ये एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। सम क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू दैट द गोस्ट वाज देयर एंड सम क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू दैट इट वाज मेयरली हेलुसिनेशन, वो हेलुसिनेट कर रहा था, वो असल में वहाँ थे ही नहीं। सम क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू कि उस वक्त उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी खड़े थे, उसके अपने बेस्ट फ्रेंड्स ने उस गोस्ट को देखा था, दैट मीन्स द गोस्ट वाज देयर। लेकिन सम क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू कि मे बी someone had done some black magic and that is why all of them could see the ghost. So these are the different interpretation, और हर नई इंटरप्रिटेशन की वजह से एक नया कन्फ्लिक्ट जाहिर होता है, और हर नए कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे पास और इंटरप्रिटेशंस आती हैं। So the goal of deconstructing a text basically is to reveal the grayness of a text, to reveal the different shadows, the different interpretations or different meanings of a particular टेक्स्ट, ठीक है। जैसे लेट सपोज कैरेक्टर की बात हुई है, तो अनार ड्रामा में जो अल्तमश का कैरेक्टर है, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कम्स ऑफ एज अ वेरी इविल पर्सन, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ही इज़ मच लाइक मिस्टर डार्सी फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ही इज़ क्वाइट अ गुड पर्सन। हमें ये भी पता चलता है शुरू में कि उसने कत्ल किया था, ठीक है, तो वो हमारे सामने बहुत इविल जाहिर हो जाता है, लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है ही किल्ड अ पर्सन
क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू सेव हिज सिस्टर, ठीक है। लेकिन अगेन उसमें ये भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि ठीक है वाई डिड ही, उससे कानून जो है वो अपने हाथों में क्यों लिया, उसको चाहिए था कि पुलिस को बता देता या उनके सामने जो है या कोई केस कर देता, उसको ख़ुद नहीं मारना चाहिए था। तो ये डिफरेंट आपकी इंटरप्रिटेशन हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, और हर नया इंटरप्रिटेशन आपके पास एक नया कन्फ्लिक्ट लेकर आ रहा है। So that's about it. This lecture is very long, I know, but as it will be safe with you, so hopefully you will understand it. If you have any confusion, please let me know, and inshallah I will try to explain it to you.